Hello friends. Today we will going to learn a new chapter in mathematics that is circles. Circles is a chapter that you have learned in class 9th. Also you have understood many theorems and you have proved many questions based on theorems that you have learned in the chapter. Now circles is a very important chapter as far as we are concerned with geometry part of class 10th or of class 9th. It's because it carries a huge weightage in the examination as well as it is important for further studies. Even if you go in any field in commerce or mathematics or science or biology, you need to understand this chapter. You have to apply the concepts that you learn in this chapter in your higher studies. Okay, because the physics in 11th class contains huge application of the geometry part of class 9th and 10th. Similarly, if you talk about commerce, the economics parts also require huge applications of geometry. It contains huge graphs. So you need to be very well versed in this chapter. So carefully try to understand the importance of this chapter and try to learn it as much as you can. Okay. So what we will going to do in this chapter, as you have done in the 9th class, you have understood various terminologies related to circles. For example, you know that what is a circle? A circle is simply a locus of a point. Okay, what I am trying to say is circle is locus of a point which is at a fixed distance from a given point. Okay, and to explain this better, let us understand this locus point, this locus term. Locus means path. Okay, locus का मतलब होता है path. तो circle क्या है? Circle is basically a path of a point which is at a fixed distance from a given point. For example, this is a fixed point. Okay, this is a fixed point, it is a given point, and let me draw another point which is at a distance, let us say R, from this point. Now let us name this as O and this point as A. What I am trying to say is A point is at a fixed distance from this O point. Now if I try to move this A point, since A point is at a fixed distance, so I cannot move this A point in this direction or in this direction. Okay, it is not possible because it has to be at a fixed distance from this O, this point. So when you try to move this point, it will move in this direction, in this kind of path, and you will find that when you join the path, when you trace the path of this A point, it becomes a circle. Okay, so this is a circle. Circle is what? It's simply a locus, a path of a point which is at a given distance from a fixed point. So to understand it better, let us take a practical example. For example, अगर मैं यहाँ पर एक पोल लगा दूँ, okay, इस तरह से सामने एक पोल लगा दूँ और इस पोल से एक नॉट, एक थ्रेड का नॉट बांध दूँ और उसका दूसरा सिरा किसी गाय या भैंस को बांध दूँ. ओके, एक पोल लगाया, उससे एक भैंस को बांध दिया एक रस्सी से. नाउ व्हाट विल हैपन? दैट भैंस विल स्टार्ट रनिंग. वो भैंस रन करना शुरू करेगी और रन करते करते जिस पाथ को वो ट्रेस करेगी, दैट पाथ विल बी द सर्कल. ओके, बिकॉज भैंस क्या है, वह एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है. उस पोल से उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा. दैट्स वाई जो पाथ उस भैंस ने ट्रेस किया, वह पाथ क्या होगा? वह पाथ सर्कल होगा. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. इस तरह से मैं सर्कल को बना सकता हूं. ये चीज आप अच्छे से जानते हैं. नाउ फिर सर्कल्स के बारे में आपने कुछ और खास चीजें जो पढ़ी 9th क्लास में, दैट इज इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज सर्कल, दिस इज द सेंटर. इस सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं
और दिस इज द रेडियस. ओके, द फिक्स्ड डिस्टेंस, जो भैंस से मैंने रस्सी बांधी थी, उस रस्सी और उस भैंस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो रस्सी का लेंथ है, दैट डिस्टेंस, दैट लेंथ इज बेसिकली द रेडियस. उसे हम रेडियस कहते हैं. सो दिस इज द रेडियस r. Okay, this is center, this is radius. Now, if I take any point on this circle, these are some n number of points. If I calculate the distance of this O point from any of these points, the length will remain same. Okay, इसका radius कितना है r. इसका मतलब this A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, यह सभी पॉइंट्स इस O पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पर ही रहेंगे. ओके, नाउ माइंड इट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि ये कंक्लूजन सुनने में बड़ा आसान लगता है, जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है. सो इसीलिए इसे बड़े अच्छे से समझ लीजिए. इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस सेंटर से, इस ओरिजिन से, इस सेंटर ऑफ द सर्कल से हमेशा सेम डिस्टेंस पर होगा, रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर ही होगा. तो OA भी R होगा, OB इज R, OC R, 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 these all are R's. ओके, यह सभी लेंथ कितनी होगी? R लेंथ की, R यूनिट्स की लेंथ होगी. ओके, नाउ इसके बाद आपने पढ़ा था कि दैट इफ this is a circle, let us draw a circle like this. In this circle, this is the origin or center O. Okay, let us draw it properly. So let us say this is a circle. Okay, and this is the center O. Now this is origin, this is the circle. If I draw a line in this circle which touches the 2 points on the circle, which intersects this circle at 2 points, this line, let us say AB. So what is AB? AB is the chord. AB को हम क्या कहते हैं? AB is chord. Chord of the circle. Okay, AB क्या है? chord है. Now, अगर ये AB को हम ध्यान से देखें तो AB क्या है? AB इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट है बिकॉज लाइन तो कैसी होती है? लाइन प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जाती है, लेकिन AB तो सिर्फ उस लाइन सेगमेंट, उस लाइन का एक टुकड़ा है. ओके, सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द कंप्लीट लाइन, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ आई ड्रॉ द कंप्लीट लाइन ऑफ विच दिस AB इज अ पार्ट. ओके, सो my line will look something like this. This is a line of which AB is a segment, AB is a part of this line. Okay, let us say this line is L. Now what you can see? You can see that basically AB chord is a part of a line. AB chord is a part of a line, a segment of a line which intersects the circle at 2 points, or cuts the circle, which passes through the circle at 2 points. Okay, so what I am trying to say is, let us write this. AB is a segment of a line L which intersects the circle at 2 points. Okay, now AB क्या है? AB अगर इस लाइन का एक सेगमेंट है तो हमने AB को कॉर्ड कह दिया. ओके, AB एक ऐसे लाइन का सेगमेंट है जो लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है. 2 पॉइंट्स कौन से? पॉइंट A और पॉइंट B. तो इसीलिए AB जो हुआ हमारा कॉर्ड हो गया. लेकिन फिर ये लाइन क्या हुई? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि दैट L लाइन, दिस लाइन L कहां चला गया?
segment of line L. This line L is a chord. I cannot say that L is a chord of this circle. Why? Because L is a line which extends from minus infinity to plus infinity. But the segment of this line, this AB, is a chord because it is inside the circle. It touches the circle. यहाँ पर इस line segment का end हो जाता है. Then I will say that this L line is not the chord of the circle. Rather, it is a L is known as secant. Okay, L को हम क्या कहेंगे? L will be known as secant of this circle or secant for this circle. Okay, so what is a secant? Secant is basically a line which intersects the circle or which touches the circle at 2 points. Okay, so what will be the definition of secant? Secant क्या है? Secant is nothing but a line which intersects the circle at 2 points. Okay, so now let me quickly review what I have said. I have said that if AB is a chord, तो AB क्या है? AB is a segment of a line L which intersects the circle at 2 points. तो AB को हमने chord कह दिया, तो फिर L को क्या कहेंगे? L को कहेंगे secant. तो secant क्या होता है? secant एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो. ओके, सो इफ आई हैव अ सर्कल लाइक दिस, let us say this is a circle, this is the center O. Okay, and if I draw a line N like this, so N is what? N is a line. N क्या है? एक लाइन है, लेकिन ये N इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहां पर और एक यहां पर. ओके, सो यहां से यहां तक का जो लाइन सेगमेंट है, इस सेगमेंट को इतना, इसे मैं कहूंगा कॉर्ड ऑफ द सर्कल. लेकिन मैं N को क्या कहूंगा? N is basically the secant. Why? Because N is intersecting the circle at 2 points. So N क्या है? एक secant है. Okay? Now, similarly, अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, M. So क्या M एक कॉर्ड है या फिर M एक secant है? M is basically a secant. Why? Because M is a line. लेकिन अगर मैं M का पार्ट जो कि इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस मच पार्ट, सिर्फ इस पार्ट को ऑब्जर्व करूं, तो दिस पार्ट, द सेगमेंट विल बी कॉर्ड. ओके, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ सीकेंट. सीकेंट और कॉर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. कॉर्ड कुछ नहीं है, उस सीकेंट का ही एक टुकड़ा है, एक पार्ट है. ओके, सिमिलरली इफ आई ड्रॉ वन मोर लाइन, let us say K. So K is what? K is a secant. Okay, K एक secant है because ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, और जो पॉइंट्स पे टच कर रहा है उतना सेगमेंट क्या होगा? उतना सेगमेंट कॉर्ड हो जाएगा. So this is simply the definition of a secant. Okay, इससे ज्यादा secant में समझने के लिए कुछ भी नहीं है. Now let us come to a special case of secant. अब हम सीकेंट को थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. अब हम कॉर्ड को भूल जाते हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ सीकेंट से डील करते हैं. लेट अस से दिस इज अ सर्कल. ओके, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O. O इसका एक सेंटर है, यह एक सर्कल है. फॉर दिस सर्कल, इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच पासेस दिस सर्कल, विच इंटरसेक्ट दिस सर्कल लाइक दिस, this is, let us say, N1. N1 is a line which intersects the circle at 2 points. It means N1 क्या है? एक secant है. N1 एक secant हो गया, और N1 ने इस सर्कल को कहां पे कट किया? N1 ने इस सर्कल को 2 जगह पे कट किया. This is A1 and the second one is B1.
ओके, A1 और B1 पॉइंट्स पे इस N1 ने इस सर्कल को कट किया। अब यू कैन सी दिस इज द सेंटर और ये N1 यहां से पास हो रहा है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस N1 is this one, this 90 degree. Let us say this is C1. So OC1 is what? OC1 is basically the distance between center and the secant. Okay, I am repeating it again. OC1 is the distance between center of the circle and the secant. Okay, so OC1 यहाँ पे हम लिख देते हैं distance between O and N1. Okay, distance between O and N1. Now try to observe it very carefully. This is just a one secant. तो क्या मैं सिर्फ एक ही secant ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा एक सर्कल में मैं मल्टीपल secants ड्रॉ कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस N1 के पैरेलल ही, ओके माइंड इट, मैंने कहा इस N1 के पैरेलल ही एक और सीकेंट ड्रॉ करता हूं। ओके, N1 के पैरेलल अगर मैंने एक और सीकेंट ड्रॉ करा, सो कुछ इस तरह से मैं सीकेंट को ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज N2, दिस इज अनदर सीकेंट। दिस सीकेंट इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट A2 and at B2. Okay, and the distance of this secant from this O is this one, OC2. Okay, OC2 is the distance of this secant from the center. So now observe it very carefully. Since OC2 जो लेंथ है इस N2 वाले secant का जो सेंटर से डिस्टेंस है, OC2 is greater than OC1. N1 का डिस्टेंस ओरिजिन से, N1 का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से जितना है उससे ज्यादा डिस्टेंस N2 का है इस सर्कल से। ओके, इस सेंटर से N2 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो एक तरह से मैंने क्या कहा, मैंने इस N1 के पैरेलल एक N2 ड्रॉ करा। इट मींस मैंने इस N1 को उठाकर नीचे शिफ्ट कर दिया, इस N1 को यहां से उठाकर N2 की पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, तो मेरा डिस्टेंस बड़ा हो गया। ओके, लेकिन एक खास बात और, आप जब A1 B1 की लेंथ को देखेंगे और A2 B2 की लेंथ को देखेंगे, you will find that A1 B1 is greater than A2 B2. Now बड़े ध्यान से इस चीज को देखिए, जब मैंने इस सीकेंट को नीचे खसकाया तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बढ़ गया। ओके, OC2 बड़ा हो गया, OC2 इज ग्रेटर देन OC1, लेकिन जो कॉर्ड का लेंथ था, जो A1 B1 का लेंथ था, वो लेंथ और A2 B2 के लेंथ को कंपेयर करने पे मुझे ये दिखा कि अगर सेंटर से इस सीकेंट का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इस कॉर्ड का लेंथ कम हो जाता है। ओके, इस कॉर्ड का लेंथ कम हो जाता है, हमें कम दिख रहा है, फिगर में कम दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस सीकेंट को और नीचे शिफ्ट करूं, इट मींस कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, दिस इज N3 और ये इस सर्कल को A3 और B3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ अगेन यू कैन सी दैट the perpendicular distance from center to this chord is OC3. Okay, OC3 क्या है, इस perpendicular distance from center to this chord. Now in this case you can see OC3 is bigger than OC2 is bigger than OC1. Okay, so let us write the conclusions. The conclusion is I am trying to say that OC3 is greater than OC2 is greater than OC1. Okay, और दूसरा कंक्लूजन, A3 B3 is smaller than A2 B2 is smaller than
A1 B1। बड़े ध्यान से इस कंक्लूजन को देखिए, सबसे ज्यादा लेंथ इस N3 का है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस सीकेंड्स का, N3 का डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे ज्यादा है, तो OC3 सबसे बड़ा लेंथ हुआ, उसके बाद OC2 और उसके बाद OC1। लेकिन वहीं पे जैसे जैसे ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इस कॉर्ड का लेंथ कम होता जा रहा है। यू कैन सी द कॉर्ड लेंथ एट OC1 इज A1 B1, जो कि काफी बड़ा था। फिर जैसे ही मैंने इस सीकेंड को नीचे खसकाया, A1 और B1 पॉइंट्स कैसे हो गए, नीचे आ गए, पास पास आ गए। सिमिलरली अगर मैंने इसको और नीचे खिसकाया तो ये A2 और B2 पॉइंट भी नीचे आ गए। तो क्या दिख रहा है हमें, A3 B3 सबसे छोटा, A2 B2 उससे बड़ा और A1 B1 सबसे बड़ा। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं सीकेंट को ओरिजिन से दूर ले जाते जाऊंगा, ओरिजिन से जितना दूर ले जाते जाऊंगा उतना ही ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ओके, ओरिजिन से दूर करा तो डिस्टेंस बढ़ता चला गया, और वहीं पे इस कॉर्ड का लेंथ, कॉर्ड लेंथ मतलब लेंथ ऑफ दिस A2 B2, A1 B1, लेंथ ऑफ दिस A3 B3, ये लेंथ डिक्रीज होता चला जाएगा। सो इफ secant is shifted away from center, the length of chord decreases। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स point A and B will come closer। You can see जैसे जैसे सीकेंड नीचे खिसकता जा रहा है ये A और B पॉइंट पास पास आते जा रहे हैं। यहां पे डिस्टेंस इतना था, फिर डिस्टेंस कम हो गया, फिर और कम हो गया। नाउ अगर मैं इस N3 सीकेंड को और नीचे शिफ्ट करूं तो क्या ये A3 B3 और पास आ जाएंगे? यस, ठीक है, और ज्यादा पास आते जाएंगे। एंड जैसे जैसे आप इस N3 को नीचे शिफ्ट करते जाएंगे एक लिमिट आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा सच दैट ये सीकेंट अभी जो हमें 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सीकेंट इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलता हुआ दिखाई देगा। What you will find? A limit will come when this secant touches this circle at only one point. You will find this that secant touches this circle at only one point, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करता हुआ दिखाई देगा, और ये दोनों पॉइंट A3 B3 यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएंगे। मैं कहूंगा इन्हें A4 और B4। A4 B4 क्या है? A4 B4 अलग पॉइंट्स नहीं है, एक सिंगल पॉइंट ही है, बिकॉज ये जैसे जैसे सीकेंड नीचे आया ये दोनों पॉइंट्स क्लोज आते गए और एक लिमिट बाद कोइंसाइड कर गए। ओके, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए, दैट इज ओवरलैप कर गए। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। नाउ यू कैन सी सीकेंड के लिए हमने क्या कहा, सीकेंड एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इस N4 लाइन को देखेंगे तो जैसा मैंने कहा इस सीकेंड को मैं नीचे खसकाता गया तो एक लिमिट आया जब ये N4 लाइन इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्या ये N4 लाइन सीकेंट कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सीकेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना जरूरी है, लेकिन N4 तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम N4 को सीकेंट नहीं कहेंगे, हम N4 को कहेंगे टेंजेंट। ओके, व्हाट आई विल से टू N4? N4 is basically the tangent to this circle. Okay, N1, N2 and N3 are the secant to this circle. These 3 are the secants. बट वहीं पे ये N4 क्या हो जाएगा? टेंजेंट। N4 will be known as tangent to this circle.
and it is because N4 touches this circle at single point. So tangent का definition हम क्या लिखेंगे? Tangent is basically a line which intersects or touches, okay, the circle at only one point. Now this conclusion is very very important. जैसे जैसे मैं सीकेंट को नीचे खसकाते जा रहा हूं, एक लिमिट पर ये सीकेंट टेंजेंट बन जाता है. ओके क्या कहा मैंने? एक लिमिट पर ये सीकेंट टेंजेंट के रूप में बन जाता है, ये टेंजेंट बन जाता है, ये सीकेंट नहीं रह जाता. ओके नाउ अब सोचिए अगर मैं इस N4 को और नीचे खिसका दूं, अभी यहां पर इस पॉइंट पे ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस N4 को और नीचे खिसका दूं तो और नीचे खिसकाने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. लेट अस ड्रॉ इट विथ अनदर कलर. कुछ इस तरह से N5 ये कुछ ऐसा दिखाई देगा N5. नाउ N5 जो लाइन है क्या ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है? नो. N4 टच कर रहा है, N5 तो टच ही नहीं कर रही. क्या N5 इस सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है? नो. ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना तो टच कर रही है. सो व्हाट विल बी व्हाट वी कॉल टू द N5? N5 इज नीदर सीकेंट नॉर टेंजेंट. N5 क्या है? N5 ना तो सीकेंट है ना ही टेंजेंट है. Now this is a very very important conclusion. तो हमारे पास तीन तरह की लाइंस एक सर्कल के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है या दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है वो कहलाती है सीकेंट. दूसरी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट. और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ना तो टच करती है ना कट करती है, बिल्कुल बाहर से निकल जाती है, उसे हम कहेंगे वो ना तो सीकेंट है ना ही टेंजेंट है. वो लाइन एक सिंपल लाइन है और कुछ भी नहीं. ओके सो दिस इज बेसिकली हाउ द टेंजेंट इज डिफाइंड और टेंजेंट इज डिराइव्ड. एक सीकेंट था, उस सीकेंट को नीचे खसकाते गए और एक लिमिट आई जब ये दोनों पॉइंट्स ओवरलैप कर गए, ओवरलैप करके एक पॉइंट पे मीट हो गए और वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ टच. ओके जहां पे टच हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं. ओके जहां पर टेंजेंट ने इस सर्कल को टच किया है. सो दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट पर टच करा है सर्कल को. ओके सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट. नाउ दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट. फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, देन हम इस टेंजेंट सीकेंट के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं.